दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर अगेन आई एम हियर. सो लेक्चर नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. तो आज हम लेक्चर 4 की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों. वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस चैप्टर नंबर 6, external analysis, and that too political and legal factors. So today will be the last conceptual lecture for completing this chapter number 6. दोस्तों we have covered 6 chapters and today is the most important chapter, a lecture that is in relation to what are the legal legislations, direct legislations by the government in respect to consumer protection, in respect to health and care of the employees. We have covered employees protection, we have covered data protection. Now we are into how to protect the customers, rights of the customers को कैसे protect करें. बेटे आपने आजकल देखा होगा Amazon, Flipkart, you can directly return that product also within a week और आपकी पेमेंट डायरेक्टली मिल जाएगी आपको. Within 1 or 2 working days, that account will be automatically credited. So what is this? Amazon, Flipkart, Snapdeal, Myntra, ये क्या कर रहे हैं सब? बेटे it is due to customers protection. And you are giving, you know, the रिव्यूज ऑल्सो इन Amazon की आपने जो प्रोडक्ट देखा क्या वो प्रोडक्ट वैसा ही था जो एक्चुअली में स्पेसिफाई हो रहा था. सो यू हैव टू गिव द रिव्यूज. What is this? It is just for the protection of the customer's right कि आपने जो डिस्क्रिप्शन देखा है वैसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. The same price is there, the same quality is there, the same service is there, and for that we'll be doing one customers protection. So please open your registers. External analysis, political and legal factors, lecture number 4. बेटा मैंने आज एक कोटेशन लिखा है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी. ऊपर से हम सीख के नहीं आते बेटे. ये भी मैंने F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस, ऐसा थोड़ी मेरे को पता होगा. कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी विल हेल्प यू इन गेटिंग द सक्सेस. सो लेट्स मूव. Direct legislation, we have discussed that government plays a very important role by government policies or by direct legislations. Within direct legislation we have to discuss, एक तो बेटा हमें डिस्कस करना है employees protection, एक डिस्कस करना है data protection. We have already covered that. Today in this lecture number 4 I will be discussing with customer protection and health and care. Customer protection and health and care. तो मैं पहली बात आ रहा हूँ customer protection में. बेटे ये customer है, this is customer, I am talking of customer. तो आप अपना रजिस्टर्स ओपन करें और लिखें कस्टमर्स प्रोटेक्शन. बेटे एक होता है सेलर और एक होता है बायर. क्या लगता है बेटे, सेलर एंड बायर? सेलर, वी हैव डिफरेंट एक्ट्स आल्सो, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. बट मैं आपसे जनरल एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि एज अ सेलर आप एक चाय पीने जाते हैं चाय वाले की दुकान से, 10 रुपीज यू आर पेइंग, और आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी चाय में अदरक हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, दालचीनी हो, प्रॉपरली बनाई जाए. सो दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस एज अ बायर. और आपको जब ये सब चीजें मिलती हैं तो यू विल बी सेटिस्फाइड. Similarly, if you purchase a product from Amazon, Flipkart, you are expecting something कि जो पिक्चर आपने देखी है बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन हो, डिस्क्रिप्शन जो देखी है सेम डिस्क्रिप्शन हो. So there are some rights, and if you are purchasing that product which is not in the normal condition, so you should have a right to return it, you should have a right to replace it, you should have a right to repair it. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बताने हैं. That what are the rights? We have a separate act in European Union that which protects consumer, that is named as Consumer Protection Act. So in that Consumer Protection Act there are some general principles. तो आज के इस लेक्चर में हम उन जनरल प्रिंसिपल्स को रेफर करेंगे and those are very basic general principles. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने, I have kept one is seller and second is sell buyer. Amazon, Flipkart, Domino's Pizza, Infosys can be the seller and the buyer of their products or services. Now, which has a dominating position because this person has paid the money. Buyer ने अपने hard earned money has paid to that seller. So, I should protect the buyer. So, I will be discussing with the rights, the principles of my consumer, that is Consumer Rights Act
2015। तो बेटे आइए मैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रिंसिपल्स की बात करूं। बेटे पहला प्रिंसिपल ये होगा कि जो भी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफाई की थी और जिस पर्पस के लिए मेरे को लेना था और जो मैंने ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया था सेलर को, दैट आई वांट ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर एंड द साइज एंड द लेंथ ऑफ दैट ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर शुड बी दिस शुड बी द कलर, दिस शुड बी द क्वालिटी। और अगर वो वैसा नहीं आता है तो बेटे दिस इज रॉन्ग। सो पहला प्रिंसिपल इज द सेलर शुड डिलीवर द गुड of the same quality, same description, same price as specified. So first principle is good must be satisfactory quality. It must be of satisfactory quality. For example, air conditioner, बेटे आजकल ट्रिपल स्टार, डबल, 4 स्टार, 5 स्टार भी आते हैं पावर सेविंग। तो if the customer has ordered for a 5 star, then the seller must deliver 5 star air conditioners. So accordingly all the things should be stated। तो मैंने बेटा प्रिंसिपल 1 लिखा goods must be of satisfactory quality and for the stated purpose। प्रिंसिपल 2 goods must correspond to the given description। आपको पता है YouTube में जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो नीचे आता है डिस्क्रिप्शन की इस वीडियो में क्या है। So we have to write down that description which is there in that video। Similarly, description is given in Amazon, in Flipkart regarding the product, quality of the product, color of the product, durability of the product। तो बेटे जो प्रोडक्ट दिया उसका ड्यूरेशन, उसका डिस्क्रिप्शन शुड मैच विद द प्रोडक्ट। तो आप लिखें, प्लीज लिखें बेटे, रजिस्टर ओपन कर लें। प्रिंसिपल वन गुड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड सेकेंड इज गुड्स मस्ट बी शुड बी कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन डिस्क्रिप्शन। और बेटे आजकल आपको पता है सब कुछ डिजिटल कंटेंट में आ रहा है। गूगल ड्राइव में हम अपनी क्लासेस दे रहे हैं, ऐप में क्लासेस दे रहे हैं, अपनी भूपेश आनंद ऐप में क्लासेस दे रहे हैं। तो बेटे द पॉइंट इज इफ वी आर डिलीवरिंग द डिजिटल कंटेंट then that buyer should have the right, and that digital content is not correct. There is some problem in that. So in that case seller should either repair it or should get it replaced. So these are the rights, these are the basic principles which are to be followed in protecting the consumer, so that बेटे इससे क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो देयर विल बी मोर बिजनेस देन देयर विल बी मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर GDP, मोर पर कैपिटा इनकम, एंड ग्रोथ विल बी देयर एंड माई करेंसी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। So these are the basic principles which we should follow while protecting the rights of the consumer. Next principle लिखें बेटे प्रिंसिपल नंबर 4, सेलर मस्ट हैव। अब मैंने एक सामान, ये जैसे पेन है बेटे, मैंने इसको चोरी किया और आपको बेच दिया, तो बेटे इट इज रॉन्ग। एज अ सेलर आई शुड हैव द लीगल ओनरशिप एंड टाइटल। मेरे पास इसका टाइटल, जैसे ये हम माउस यूज कर रहे हैं बेटे कॉर्डलेस, मैंने कहीं से चोरी किया और आपको बेच दिया, दिस इज अगेन रॉन्ग। I should have the legal ownership and the ownership. And regarding services, बेटे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सर्विसेज में जो भी सर्विस दी जाए it should be completed within that stipulated time। जैसे एयर कंडीशनर की सर्विसेज आप देंगे या आफ्टर सेल सर्विस होंगी, whether that is guarantee, whether that is warranty, so those points to be taken into account, and within that stipulated time that service should be given। So these are the basic principles which has to be followed, which are there in Consumer Protection Act, completed at the stated price and carried with skill and care। आपका मैकेनिक एयर कंडीशनर ठीक करने आया और कुछ टूट गया, again it should have been carried with skill and care। So these are the rights, these are the basic principles which have to be followed। तो बेटे मैंने इसकी स्लाइड्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर की हैं, अगर आप देखें तो I have prepared some slides for you। Just have a look on this। Employees protection we have already covered, we have covered this, risk we have covered। बेटे मैं आ गया यहाँ पर, मैं पहले आ रहा हूँ consumer protection, because I am doing consumer protection। Many countries have legislation which attempt to protect consumers from failing। So it means you are going to start a business organization in a country, so you should be aware of the direct legislations in relation to consumers of that country, because then only you can flourish। तभी आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, if otherwise you cannot। So what are the direct legislation as per European Union, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं।
बेटे सेल्स ऑफ गुड्स में क्या क्या ध्यान रखना है? द सेलर मस्ट बी हैव लीगल टाइटल, द सेलर मस्ट डू दिस, द सेलर मस्ट डू दिस, द सेलर मस्ट हैव दिस, ऑल दोज ब्ला 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 थिंग्स आर टू बी स्पेसिफाइड. फॉर एग्जाम्पल, द seller must have legal title, the goods must be of satisfactory quality. तो अंडरलाइन करें बेटा, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंड इन केस ऑफ purchase based on the description, as per the description, and in case of digital content. So these are the main points which you have to highlight. In case of digital content, it should be either right to replace or repair. So these are the points to be taken into account in case of goods. And in case of services, it should be reasonable care, reasonable time, and reasonable price. So these are the basic points to be taken into account. Again, within consumer protection, I have also mentioned what are the features of simple contracts. Because when I say a consumer is entering into buying a product from the seller, it means consumer is entering into a contract with the seller. The seller must have some basic ideas, some basic features. And what are the basic features of a contract? वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्सन, वन इज ऑफरर एंड सेकंड इज एक्सेप्टर, एक ऑफर कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, देन दिस इज अ contract between offerer and acceptor. Offerer and acceptor. You are getting your point? So there must be a consideration. All the parties must be legal. बेटा दोनों के दोनों parties legal होनी चाहिए. Legal means they are entitled to enter into a contract. There must be agreement. There must be an intention to enter into a contract. There must be, there must be entitled to enter into a contract as per the law. For example, minor is not entitled to enter into a contract. तो यहां पर मैंने लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, what are the features of a simple contract. Generally a contract is enforceable between two or more parties. When I say one person is offerer and second is acceptor, बेटे इनके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट. This is a contract. Now, contract should be, it should have some basic features. Then only we can say it is a contract. There must be intention to enter into a contract. बेटे पहली बात तो नियत होनी चाहिए. There must be a consideration which should be received by two parties. All the parties should be legal entitled or capable to enter into contract. So for consumer protection, we will be considering these points to be taken into account. The parties must have agreed on the terms of the contract. In many countries, both parties actually have to get some values, consideration should be there. But most important words, intention to create legal relation and capacity to enter into the legality of the contract. So ये जो बताया बेटे मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड बताया. तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं that what are the legal legislations in relation to health and care of employees. Employees की health केयर करने के लिए एट द टाइम ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, एट द टाइम ऑफ बिजनेस ड्यूटीज, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज. तो उस समय क्या बेसिक हेल्थ और केयर का ध्यान रखना चाहिए? किसको? एम्प्लॉयर को. व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटीज ही शुड प्रोवाइड टू द एम्प्लॉइज. बेटे ऐसा ना हो कि आप जहाँ पे वर्क प्लेस वहाँ पे सांप आ रहे हैं और सांप काट रहे हैं. बेटे दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर. कई बार जंगलों में काम होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग इन दैट फॉरेस्ट एरिया. तो these all safeguards should be taken into account by the employer. फर्स्ट एड सर्विसेज होनी चाहिए बेटे, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली वाटर की फैसिलिटी हो, प्रॉपर बेटे कारपेट्स जो हैं दे शुड नॉट बी टॉर्न, वेट प्लेस नहीं होना चाहिए बेटे. ऑल दैट safeguards to be taken into account. So that will be covered in, that will be covered in. कहाँ पे कवर्ड होगा बेटे वो हम कवर कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. तो मैंने मैकडोनल्ड्स लिखा. मैं मैकडोनल्ड्स से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप देखिए आई हैव केप्ट, मैंने आपके लिए कुछ यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल
कॉशन वेट फ्लोर, बेटा जब गीला फर्श होता है तो उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप जब वॉशरूम से आते हैं तो आप वाइपर लगा कर आते हैं, वाइपर लगाते हैं, तो इट मीन्स इफ द एम्प्लॉयर इज doing these types of mistakes, then they have a civil laws and criminal offense. This is a civil offense. तो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इट मीन्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पे पानी पानी गिरा हुआ और यहाँ पे एम्प्लॉयज कैसे वर्क करेंगे? एम्प्लॉयज कैन नॉट वर्क, अगर करेंगे तो उनको लगेगी। सो दीज आर द बेसिक हेल्थ एंड केयर। कारपेट्स बेटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कारपेट अगर फटे होंगे तो अगर आपका शूज उसमें अटक गए, आप गिर सकते हैं तो कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कारपेट शुड नॉट बी टॉर्न। ये एक बेसिक मैंने आपके लिए गूगल बाबा से निकाला। बेटे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आप चेक करिए जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे शॉक्स ना हो, बेटा आग लग सकती है, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑल दीज सिस्टम्स आर नॉट अलाउड, so you as a business organization, before going to start with the business organization in that country, but you should know what are the basic health and care norms which you have to take into account. तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। आइए थोड़ा सा हम हल्का सा मेंशन करते हैं, हेल्थ एंड केयर सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। मैकडोनल्ड्स आप लिख ही चुके हैं, ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर ब्रीच हो जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी तो एम्प्लॉयर इज assumed to be failure to provide healthy environment, which will be breach of common law, and in some cases it will be treated as guilty of criminal offense. स्नैक्स का मैंने एग्जांपल दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज एम्प्लॉयर एंड दिस इज एम्प्लॉई, and these are the hazards which are generally there. So employer has some responsibilities, employee also has some responsibilities. तो आज के इस लेक्चर में coming 5 minutes I will be telling you, पहली बात तो मैं बताऊंगा what can be the different types of hazards जो मैंने अभी गूगल बाबा से दिखाए। wet floors दिखाए, poor lighting दिखाए, torn carpets दिखाए, unsafe electricals दिखाए। So these should not be there. So for that employer should take some actions and he is responsible for that. He is the employer, he should prevent risk to health. He should provide first aid facilities, safe environment. He should set emergency plans. He should safe plant. It means जो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको यूज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को हर्ट हो रहा है। So all these points to be taken into account. Employer prevent risk to health. लिख लें please. Provide first aid facilities. Provide safe environment. Set emergency plans. Safe plant is being used. Safe plant is being used. ठीक है जी। Now what are the employees responsibilities? What are the employees responsibilities? Because employee is also responsible for taking into account. So what are the employees responsibilities? When I say employees responsibilities, he should take care of own health. उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। He should take care of his own health, care not to put other people at risk. जानबूझ के दूसरों को रिस्क में डालना नहीं चाहिए। उसको अपना भी ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखना चाहिए, अपना रीजनेबल केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड ही इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रॉन्ग। तो यहां देखिए जी, ही शुड रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर। अगर उसको इंजरी हो गई है काम करते करते तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई दैट ही शुड इन्फॉर्म एम्प्लॉयर कि आई एम फेस्ड विद दिस मच पर्सनल इंजरी, सो दैट नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉयर शुड टेक मोर सेफगार्ड्स और इन्फॉर्म एनीथिंग विच अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू वर्क सेफली। और एम्प्लॉई की ड्यूटी है कि एम्प्लॉयर को बताना कि ड्यू टू दिस एयर कंडीशनर, ड्यू टू दिस टेम्परेचर, आई एम नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. So these are the responsibilities of employee. So in this we are discussing what are the responsibilities of employee and what are the responsibility of employer. आइए थोड़ा सा मैं आपको अपनी साइट से अपने इमेजेस से दिखाऊं कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं इसमें आपको. Just have a look on this. Health and safety in the workshops, workplace, there are number of potential hazards. बेटे hazards कौन कौन से होंगे? Lightning, torn carpets, electric, जो अभी बताए थे. इन सब का ध्यान रखने के लिए employer, ये employer है बेटे, employer has to take into account some safeguards. First is safe working environment होना चाहिए.
प्रिवेंट रिस्क होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी सेफ होने चाहिए, सेटअप इमरजेंसी प्लान्स। आप देखते हैं जब आप मूवी देखने जाते हैं तो इमरजेंसी के एग्जिट्स बताते हैं, इवन इन द बस यू आर गिवन विद द इमरजेंसी एग्जिट। तो इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि अगर चांस कि कुछ हो जाए, यू नो, इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए, फायर लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, सो ड्यू टू दैट व्हाट आर द इमरजेंसी प्लान्स, ऑल दैट शुड बी सेट अप बाय द एम्प्लॉयर। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। प्रोवाइड एडिक्वेट फर्स्ट एड फैसिलिटीज, बेटे काम में फर्स्ट एड फैसिलिटीज बेसिक प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयर को। एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, बेटे रीजनेबल केयर लेनी चाहिए। टेक रीजनेबल केयर नॉट टू पुट अदर पीपल एट रिस्क, not to put other people at risk. So employee himself is also responsible, you know, he should take reasonable care, he should not put other people at risk. Report and injuries suffered as a result of performing their job, बेटे जब उसने काम करा था तो कुछ इंजरीज हुई तो वो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉयर this. So these are the responsibilities of employee. और बेटे अगर ये ब्रीच हो जाती हैं तो आपको मैंने बताया सिविल ऑफेंस है, इट विल ऑल्सो बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। वी आर डूइंग इकोनॉमिकल, वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस, एंड विद इन एक्सटर्नल वी आर डूइंग पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। बेटे हम पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमने किया, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या बताया मैंने, पॉलिटिकल सिस्टम बताया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताई, रोल ऑफ द गवर्नमेंट बताया, इंस्टेबिलिटी की एक्सेप्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट बताया, हाँ व्हाट आर द फॉरेन रिलेशंस, फिर पॉलिटिकल सिस्टम बताया, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ यू नो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया बेटे गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट रोल आई हैव डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। व्हेन आई से गवर्नमेंट पॉलिसीज तो डिफरेंट मैंने बताया, हाउसिंग, क्राइम, हेल्थ केयर, एजुकेशन। फिर मैंने आपको लेजिस्लेशन की बातें बताई। सो एज अ एनालिस्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर यू टेक द डिसीजन वेदर टू गो फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इन दैट कंट्री और नॉट, बेटे आपको ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। विद इन दैट लीगल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन, डिसमिसल की बात की, उसके बाद बेटे डाटा प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आई हैव डिस्कस व्हाट आर द हेल्थ एंड केयर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके जो ट्रायल टू अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो लूंगा, प्लस जो एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन हैं उनको भी एक साथ ही ले लूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करना कि मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताए, ऐसा कुछ भी नहीं है। होप यू आर एंजॉइंग इट। बेटे मैं गूगल की हेल्प से आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई वांट टू से यू नो, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।